اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آیا ٹھہرا ہوں احمد پور شرقیہ سے آپ 22-23 کلومیٹر آگے اس طرف آئیں کچھ شریف، جو کسی زمانے میں مرکز ہوا کرتا تھا اور یہاں مختلف تہذیبوں نے جنم لیا۔ یہ بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا اس لحاظ سے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلامی دور میں تو یہاں اسلامی یونیورسٹی کہا جاتا تھا اس شہر کو، اور یہاں تاریخ اس شہر میں جا بجا بکھری پڑی ہے، آثار معدوم بھی ہوتے جا رہے ہیں، ٹھہرے بھی ہیں۔ تو آج میں آپ کو شریف شہر کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ ایک ہاتھی دروازہ اس کو کہتے تھے، یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، جس کو اب چاروں طرف سے دکانداروں کے تجاوزات نے اس طرح گھیرا ہوا ہے کہ یہ اصل شکل میں آپ کو دکھانا تو مشکل ہے، لیکن آپ اس کو سب سے پہلے اس کی بناوٹ ذرا دیکھیں۔ ایڈو بجلی دے تاریں ہی وہ بھی کھڑے ڈردا ہی کھڑا اگو تے ونجن کو جو یہ نہ ہوئے چھک گنن تو اگر کوئی فوٹوگرافی چ فرق آ وجے تو ناراضگی نہ کرائے۔ تو یہ دیکھیں آپ اس دروازے کو، اس کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں۔ میں اکثر اس طرح کی جب تعمیرات دیکھتا ہوں تو آپ سب دیکھنے والوں کو بھی یہی کہتا ہوں، اور میرا اندر بھی پکار کر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کمال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ جگہیں بنوائیں، اور سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ان تعمیرات میں حصہ لیا، جو کاریگر تھے، مستری تھے، مزدور تھے، اور یہ سینکڑوں برس پرانی جگہیں جو ہیں آج بھی اسی آن و شان کے ساتھ ٹھہری ہیں، اگرچہ ان کی دیکھ بھال میں بہت کمی ہے، لوگ لاپرواہ بھی بہت ہیں، اپنے ورثے سے محبت کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، اور جو ورثے سے محبت کرنے والے ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ کسی طرح ان نایاب جگہوں کو محفوظ کر سکیں۔ تو اس کے ہاتھی دروازے کے اوپر میں یہ زوم کر کے کوشش کرتا ہوں آپ کو، یہ ایک شعر لکھا ہوا ہے فارسی میں، اگر یہ پڑھ لیا جائے۔ یہ دیکھیں، یہ شعر ہے کہ در زماں جانشین، میں اب شعر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ در زمان جانشین غوث اعظم گنج بخش رحمت اللہ علیہ نمود این قلعہ دارالامان قادری۔ پھر نچلا مصرع اس کا حاتم دربار آئند خواہ آن تاریخ گنت زیر آمد مدد خاندان قادری 1185۔ اب یہ فارسی کا شعر ہے، کچھ مجھ سے غلطی بھی ہو گئی ہوگی، تحریر اس طرح کی ہے کہ اس زبان پر عبور حاصل رکھنے والا شاید ان لفظوں کو مکمل صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو یہ دروازہ اس لیے دکھانے لایا ہوں کہ اس کو ہاتھی دروازہ کہتے ہیں، اور یہاں سے ہاتھی پر سے گزر ہوتا تھا اس دور کا بادشاہ کہہ لیں، اس علاقے کا سب سے بااختیار آدمی کہہ لیں، اس علاقے پہ حکمرانی کرنے والے لوگوں کے خاندان میں سے جو لوگ یہاں سے گزرتے تھے ہاتھیوں پر، یہ ان کے لیے یہ گزرگاہ تھی، اور یہ چاروں طرف فصیل ہوا کرتی تھی اس شہر کے، اور ان میں داخلے کا یہ دروازہ تھا۔ یہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ اس کی تقریباً 4 فٹ سے زیادہ چوڑائی ہے، 4 فٹ سے زیادہ اس دروازے کی۔ یہ میں مارکیٹ کی دکانوں کی چھت پر آیا ہوں اوپر، تاکہ کم از کم میں اس کو اتنی حالت میں تو آپ کو دکھا سکوں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جس دور میں بنا ہوگا سینکڑوں برس پہلے، آج تک جس حالت میں پھر یہ موجود ہے، کیا ہی خوبصورت اور شان و شوکت والا یہ گیٹ ہوگا داخلے کا۔ اور آج بھی اگر یہ اس پر توجہ دی جاتی، اور یہ جو چھوٹی موٹی مرمت کا کام تھا، اگر مقامی لوگ ہی دلچسپی لے لیتے اس مارکیٹ والے، تو
तो इसका ये हशर ना होता, क्योंकि ये नायाब विरसा है और विरसे को जिंदा कौम का काम होता है कि वो संभालें और उस पर फख्र करें। लेकिन अफसोस हुकूमतें भी इस तरफ तवज्जो नहीं देती और लोग हमेशा क्योंकि अपने लीडरों से, अपने बड़ों से सीखते हैं, जब हुकूमत वक्त का या गुजरी हुई हुकूमतों का ये रवैया होगा कि वो अपने आसार की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर आम आदमी से क्या तवक्को रखना कि वो इन चीज़ों को संभाले, इनकी देखभाल करे। अब हम जैसे लोग जिन्हों का समझो हाँ फटन पै में इन्हों की हालत देखते, इनको इसलिए महफूज कर रहे हैं कि ये जिस हालत में ठहरे हुए हैं इस वक्त ये विरसे, आइंदा आने वाले बरसों में इनका नामो निशान तक नहीं होगा, क्योंकि ये अब ये गुंजान आबादी में आ गया है। चारों इतराफ इसके दुकानें ही दुकानें हैं। और मैं नीचे से आपको क्या दिखाऊं बाज़ार में से कि दुकानदारों ने इसके आगे सारे अपने नाम के बोर्ड वगैरह और लगाकर इसको टोटल इसको छुपा दिया है इसको मुकम्मल तौर पर। और ये ऊपर से भी कुछ दोस्तों ने, अंदर जो दुकानदार हैं, उन्होंने निशानदही की कि यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप ऊपर चले जाएं और ये वीडियो बना लें। अब ये 1185 के दौर का बना हुआ ये गेट उस शरीफ में अब भी मौजूद है, हाथी दरवाज़ा इसको कहते हैं। और यहाँ से लोग बता रहे थे मुझे नीचे कि यहाँ से गुजरने वाले बासर लोग हाथी पर सवारी करके गुजरा करते थे, इसलिए इसका नाम हाथी दरवाज़ा पड़ गया। आज उस शरीफ में इस हाथी दरवाज़े की वीडियो की निशानदही, तो उस शरीफ की एक इल्मी अदबी शख्सियत हैं, इंतहाई प्यारी शख्सियत मलिक मोहम्मद असलम हमशीरा साहब ने की थी। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर मदनी साहब एक नौजवान हैं जो तारीख़ से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, इंतहाई बाइल्म हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो इस दरवाज़े के मुतल्लिक उनसे कुछ मालूमात लेते हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इस दरवाज़े का तारुफ हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मुझे एक तो इंतहाई बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे उस शरीफ के कदीमी विरसे को उजागर करने के लिए अहमदपुर शर्किया से यहाँ पर आए। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपने ये किले की दीवार को और ये दरवाज़े को देखा, ये हकीकत में हमारे उन जो है ना वो उस शरीफ के बादशाहों, सलातीन, जो बड़े लोग गुजरे जिन्होंने उस शरीफ की हुदूद और हिफाजत के लिए इस किले को तामीर किया, ये उन्हीं की यादगार है कि उन्होंने इसको इस वजह से बनवाया ताकि इसके अंदर कोई दूसरी हुकूमतें, दूसरे लोग, बाहर के लोग आकर हमला ना कर सकें। और अहले इल्म जानते हैं, अहले अदब जानते हैं कि किले इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि उसके अंदर जो है ना वो हिफाजत के लिए बंदा मौजूद रहे और अपने शहर की हिफाजत अच्छी तरीके से कर सके। आप देखें, आगरा को देखें, दक्कन को देखें, इसके अलावा अलवर को देखें, भंबोर को देखें, जैसलमेर को देखें, बीकानेर को देखें, या इसके अलावा मुल्तान को देखें, तो जैसे वहाँ के पुरशिकोह किले मौजूद हैं, तो ऐसे ही उस शरीफ चूँकि एक आलमी यहाँ पर जो है ना वो लोग आया करते थे, बड़े बड़े सलातीन यहाँ पे आए, हत्ता कि मुग़ल बादशाह भी यहाँ पर आए। तो इसी वजह से यहाँ पर उस शरीफ के अंदर उन लोगों की निशानियाँ, उन लोगों की बाकियात और उनके तर्ज तामीर पर, उनके अंदाज पर यहाँ पर कुछ ना कुछ बनती रही और तारीख का हिस्सा होती रही। ये जो इस वक्त हाथी दरवाज़ा है हमारे सामने, ये हकीकत में जो 1185 हिजरी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये तकरीबन हमारे शमसुद्दीन गिलानी साहब हैं, ख़ानदान कादरी, और ये शम्स महल है। तो यहाँ के बुज़ुर्गों ने 1185 हिजरी में से तामीर करवाया था, और इस वजह से करवाया था ताकि उस शरीफ की हुदूद का तयन हो सके और यहाँ पर लोग जो है ना वो अच्छी तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें और बैरूनी ताकतें इन पर हमला ना कर सकें। इस वजह से इस दरवाज़े को बनाया गया।
अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि उस शरीफ का ये जो दरवाज़ा है, इसका दूसरा दरवाज़ा कहाँ पे था, तीसरा दरवाज़ा कहाँ पे था, इसकी हुदूद कितनी थी, और उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक इस तामीर के अंदर क्या क्या लवाज़िमात इस्तेमाल किए गए थे। ये अभी जो ना पोशीदा बातें हैं, इन पर तहकीकात तो होनी चाहिए। लेकिन हमें खुशी है इस बात पर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने एक जो ना वो हिस्सा मौजूद है, ये हमारा विरसा है। मुझे तो अफसोस होता है कि नीचे मार्केट मौजूद है। मार्केट वालों को चाहिए, यहाँ के अरबाब इक़्तिदार को चाहिए, यहाँ के बासर लोगों को चाहिए, और यहाँ के अहले इल्म व अदब लोगों को चाहिए कि यहाँ पर इस दीवार, ये जो हमारा दरवाज़ा है, हाथी दरवाज़ा हम जिसे कहते हैं, इसकी जो ना हिफाजत अच्छे तरीके से वो करें। मुदरी साहब, ये जो शेर है फारसी में, इसका मानी क्या बनते हैं? ये शेर फारसी में एक तो तवील है, और बहरे तवील के अंदर जो ना ये शेर मौजूद है। इसके अंदर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है 100 अल्फ दर, यानी कि 1000 दरवाजों के बराबर ये दरवाजा है। अच्छा, ये जो ऊपर 100 अल्फ दर लिखा हुआ है, 100 अल्फ दर यानी 1000 दरवाजा। इसको अगर आप जूम करें तो सही मुझे तो इसका यही मफहूम लग रहा है। मजीद इस पर हम जो ना गौर व फिक्र करें तो इसके कई माना निकल सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें आप, दर जमाने जानशीने गौसे आजम गंज बख्श रुख नुमूद ई किल्लाए दारुल अमान कादरी हातिफम दरबार आए बदखा आ तारीख गुफ्त अज यजीद अहमद अदद खानदान कादरी। तो लफ्ज खानदान कादरी आपने देखा होगा कि जो मतलब हमारा उर्दू हमारी जब से चली है ना, उर्दू ज़बान, तो उर्दू ज़बान के अंदर एक नई चीज़ जो है ना, अहले अदब लोगों ने, उर्दू ज़बान वालों ने एक चीज़ ईजाद की है। वो क्या की कि इन्होंने उर्दू ज़बान के अंदर ऐसा किया कि इनके दौर में जो जो बड़ी बड़ी आलीशान तामीरात होती थी, किसी की विलादत होती थी, कोई पुल का संग बुनियाद रखा जाता था, या बड़े बड़े मज़ारात का, महल्लात का, तो उस वक्त ऐसा होता था कि कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दिया जाता था या ऐसा शेर बोल दिया जाता था कि जिससे उस वाक़ये की, उस तामीर की, उस विलादत की, उस बड़े काम की जो तारीख निकलती हो। तो यहाँ पर इस किले का दरवाज़ा जब बनाया गया तो इन्होंने ये शेर कह दिया। शेर कहने के बाद इन्होंने लफ्ज़ खानदान कादरी जब लिखा, तो चूंकि कादरी अहबाब ने, यहाँ के सादात ने जो ना, गिलानी सादात ने इस किले को बनवाया, तो लफ्ज़ खानदान कादरी से 1185 का अदद तारीखी एतबार से निकलता है। तो मैं ये समझता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि ये ख़ानदान कादरी का 1185 जो ना वो सन तारीख बनता है, क्योंकि एक तारीख के अंदर जो ना एक इल्मी जो ना वो इजाफा भी